So we have completed the design of stem part. Now we are going to start with design of hill slab. Hill slab, right? Now this is your retaining wall. And this part is your hill slab. This is your hill slab. And this one is the length. And the backfill is at this, on this side. This is the backfill. So to design the hill slab, the very first thing you need to understand is the type of load which are acting on hill slab. So the load which are acting on hill slab is vertical backfill load. This backfill load, vertical downward backfill load, which is acting on this. Then the weight of this hill slab itself, self weight of hill slab weight itself, that is also acting vertically downward. And due to this uplift pressure, you have this pressure diagram, P maximum and P minimum. So this much area of load, is acting vertically upward on hill slab. Right. So hill slab is facing two type of load, vertically downward and vertically upward. The vertically downward load from the backfill, so this is your backfill. Then vertically downward load is the self weight of hill slab itself, and the upward load is from uplift pressure diagram. This is your uplift pressure diagram. So this is acting vertically upward. So these three loads are acting. Now, due to this load, vertically upward and downward load, the moment is created on hill slab. Now, if you look this hill slab is free at this point. यहाँ पे ये free है. Hill slab is free at this point, but fixed at this point. यहाँ पे. Because that is connected with the stem part. यहाँ पे देखो, this whole part is free right side and fixed at the stem part. So this will again behave like a cantilever beam which is fixed at the stem part and free at the other part. So the moment will created at the fixed point, and that's why remember ABCD point. So here that point will be C point. So this is your C point where you are going to find all the movement on the hill slab. So this will be your C point, which is having the movement for the hill part. Right, so this C point is facing all the movement. So again, for this calculation, what you need to do is you need to first find out the magnitude. You need to prepare the table. First is magnitude. Sorry, first is load.
First is load of the total load which is acting, then magnitude of that load, then distance from C point, this C point, distance from C point, because this is your fixed part, this is your heel part, and bending moment at C point. So this way you need to again prepare the table where first column is load, second is magnitude, third is distance, and fourth one is the bending moment. Now one by one we need to add all the load. The very first load is backfill, the vertical downward force which is acting on heel slab. यहाँ पे पूरा सॉइल है, बैकफिल है, तो बैकफिल का लोड आपका हील पे लगेगा. सो फर्स्ट लोड इज backfill. Right, now what is load of backfill? Load of backfill is density. So backfill की density is, it is given as I guess 18 density is given. Yes, 18. So density is 18 into वॉल्यूम. तो अभी ये है तो वॉल मतलब बैकफिल का वेट वॉल्यूम कितना होगा. सो वॉट एवर इज द हाइट ऑफ दिस स्टेम, इतना तो है ही, ये पूरा यहाँ पे बैकफिल है. सो हाइट इज वन ऑफ द फैक्टर, एंड ये डायमेंशन, विड्थ डायमेंशन, दिस इज द अदर फैक्टर, राइट. एंड मल्टीप्लाई बाय 1, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ. तो एरिया क्या होगा बैकफिल का, हाइट इंटू दिस विड्थ, इतना पूरा एरिया है उसका, और लेंथ क्या होगा 1 मीटर. लेंथ इज 1 मीटर, 1 मीटर के लिए डिजाइन कर रहे हैं. सो हाइट ऑफ बैकफिल, height of stem is 4.75. So this is 4.75 height of stem. This height is 4.75. And this width, ये width है आपका 1.8. So 1.8 into 1. So this will give the load in 153.9 kilonewton. 153.9 kilonewton. Now coming to distance from C point. Distance from C point. This is 1.8. ये आपका 1.8 है. तो C point से उसका डिस्टेंस क्या होगा, ये रेक्टेंगल पोर्शन है. दिस इज योर रेक्टेंगल पोर्शन. सो रेक्टेंगल का CG कहाँ पे होगा, सेंटर पे, सेंटर पे. So 1.8 divided by 2. So distance will be 1.8 divided by 2. So 0.9. ठीक है. Now bending moment. Now due to this load 153.9 into 0.9, 138.51, इन दोनों ये लोड इंटू डिस्टेंस करोगे तो आपको मिलेगा 138.51 मोमेंट. ठीक है. और ये जो मोमेंट है वो कैसे लग रहा है, देखो ये डाउनवर्ड मोमेंट है, डाउनवर्ड फोर्स है. डाउनवर्ड फोर्स आपने सी पॉइंट पे मोमेंट फाइंड किया तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज मोमेंट. तो यहाँ पे आपको साइन बताना है क्लॉकवाइज. सो दिस इज योर बैकफिल वेट. सॉरी ये नहीं है यहाँ पे, दिस इज योर बैकफिल. यहाँ पे ये रहा आपका बैकफिल. तो बैकफिल का अगेन, ये बैकफिल का वेट आप सी पे करोगे तो वो क्लॉकवाइज होगा. तो आपका ये होगा बैकफिल का क्लॉकवाइज मूवमेंट. देन नेक्स्ट लोड कौन सा है, ये हील स्लैब का. तो नेक्स्ट लोड क्या आएगा, आपको यहाँ पे लिखना है हील स्लैब.
हिल स्लैब कौन सा मेंबर है, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर है, तो उसका डेंसिटी क्या होगा 25, 25 इंटू एरिया, एरिया क्या होगा 1.8, 1.8 उसका लेंथ या विड्थ बोल सकते हो आप, इंटू ये डायमेंशन, ये कितना है आपका, ये 0.45 मीटर, 0.45, so this is 0.45 into 1, so 25 into 1.8 into 0.45, so 20.25, तो ये हो गया आपका 20.25 वेट हील स्लैब का। अभी डिस्टेंस फ्रॉम सीजी, जैसे बैकफिल भी 1.8 मीटर लेंथ पे है तो उसका सीजी डिस्टेंस 0.9 होगा, वैसे ही हिल स्लैब का भी है 1.8, सो दिस सीजी डिस्टेंस इज आल्सो 0.9, दिस इज आल्सो 0.9, ठीक है। सो 20.25 इंटू 0.9, सो 18.22, और ये भी कैसा है क्लॉकवाइज, ये भी कैसा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाउनवर्ड फोर्स का मूवमेंट, दिस इज फॉर डाउनवर्ड फोर्स मूवमेंट। अभी क्या करना है, अभी यू रिक्वायर्ड द अपलिफ्ट फोर्स एंड दैट मोमेंट, अभी you required uplift force and that moment. Now we have this P maximum and P minimum from our calculation. We have this P maximum and P minimum. P maximum is 120.6, P minimum is 30.16. Right. So here we required not P maximum हमें required नहीं है because we required only this up to this diagram 1.8 मीटर तक का ही चाहिए. So I'm just removing this over here. ये इतना मैं रिमूव कर देती हूँ, बट यू हैव इन योर डेटा, so I'm just writing this. Okay, and this is your P minimum. This one is your P minimum. 30.18, 30.16 kilonewton meter square. Right. Now suppose this is your P maximum. Now you have this P maximum and P minimum. As I discussed earlier also, you need to identify, you need to find out this intermediate value also. So you require this value. This value means at 1.8 meter from this P minimum point, you require pressure value. So that you can easily find by the triangle rule. So I am directly writing that value as, that value is 50 point plus 50.16. 84.46. सो दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है पूरा, ये वैल्यू है 84.46 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू, this is P minimum value and this one is P value of pressure at 1.8 meter. ये 1.8 meter पर you can find this value. Now I required now this is your trapezoidal. अगर आप ये देखोगे तो ये है पूरा जो एरिया है वो trapezoidal का हो रहा है, right? So what you can do is you can directly use the trapezoidal area equation, trapezoidal area equation to find the force एंड उसका सी जी आप फाइंड करो और उसके लिए सी पॉइंट पे उसका मोमेंट फाइंड करो. दिस इज द वन मेथड. सेकंड मेथड इज ट्रेपेजोइडल को मैंने डिवाइड कर दिया, ट्रेपेजोइडल को आई एम डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट. वन इज रेक्टेंगल, ये इतना रेक्टेंगल को बना दिया मैंने, राइट. एंड द सेकंड पार्ट इज ये ट्रायंगल, right? So I have divided this trapezoidal into two part, one is rectangle and one is triangle. Now I want to find out the weight of the rectangle portion and weight of the triangle portion. Now how to find that? अभी देखो, now this rectangle portion है उसका जो
प्रेशर की वैल्यू वो क्या है 30.18, यहाँ पर भी 30.18 है, और ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पर भी 30.18 है. दिस इज 30.18, राइट. सो 30.18 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर इंटू उसका कौन सी लेंथ, ये एरिया आपको लेना है 1 ये रेक्टेंगल वाला एरिया, राइट. सो वो क्या होगा 30.18 इंटू 1.8 इंटू 1 मीटर. 1 मीटर के लिए आप करो क्योंकि ये तो प्रेशर थ्रू आउट द लेंथ होगा, हमें लेंथ से कुछ नहीं करना है, वी विल कंसिडर ओनली द 1 मीटर लेंथ. सो 30.18 इंटू 1.8 इंटू 1 मीटर के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज इंटू 1. सो दैट विल बी योर फोर्स, अपवर्ड फोर्स विच इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट. ऐसे रेक्टेंगल के सीजी में, सॉरी रेक्टेंगल का सीजी अगर मुझे ड्रॉ करना है तो वो सेंटर पे होगा. सो दिस इज माय रेक्टेंगल सीजी पॉइंट. तो कहाँ पे लगेगा मेरा सीजी 9 सेंटर पे. रेक्टेंगल कितना है मेरा 1.8 मीटर का लेंथ है, तो उसका सेंटर का क्या होगा 0.9 मीटर. 0.9 मीटर से सी डिस्टेंस कितना है 0.9 मीटर पे ही है. सो दिस विल बी माय सीजी डिस्टेंस. सो हियर again I am extending this table and now I am applying all the vertical load. तो vertical load क्या होगा, यहाँ पे आपको लिखना है uplift pressure. ठीक है, अभी uplift pressure कौन सा लेते हैं हम, पहले रेक्टेंगल लेते हैं. सो कैसे फाइंड करोगे रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का ये है 30.18, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रेशर की वैल्यू 30.16 से चलेगा 30.18 ठीक है. 30.18 इंटू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आपको मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है. तो ये मीटर स्क्वायर क्या होगा इसके लिए, ये 1.8, वो 1 मीटर होगा 1.8 मीटर. तो ये 1.8 और ये थ्रू आउट द लेंथ है, थ्रू आउट द लेंथ, तो उसमें से हम सिर्फ 1 मीटर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं. सो यहाँ पे होगा 1.8 इंटू 1. सो 30.18 इंटू 1.8, तो आपको मिल जाएगा ये वेट होगा 54.32 किलो न्यूटन. ठीक है, अभी उसका सीजी पॉइंट, तो ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का सीजी कहाँ पे होगा 1.8 के सेंटर पे होगा, और वो पॉइंट से सी डिस्टेंस कितना है अगेन 1.8 सॉरी 1.8/2, तो यहाँ पे फिर से आएगा आपका 1.8/2 दैट इज 0.9. अभी ये देखो, ये आपका सी पॉइंट पे आप सब मोमेंट ले रहे हो, ये आपका वर्टिकल लोड है. वर्टिकल लोड को सी पॉइंट के ऊपर मूवमेंट करते हो तो ये आपको दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो ये दे रहा है आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 48.86. ठीक है, और कौन सी मूवमेंट आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मतलब नेगेटिव मूवमेंट आ रही है. ठीक है, सो ये 48.86 इज एंटी क्लॉकवाइज. सेम वे नाउ अगेन अपलिफ्ट प्रेशर. अभी हमारा एक और एरिया बाकी रह गया है एंड विच इज ट्राइंगल. तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना रही हूँ. सो ये इतना नीचे का पोर्शन जो है ट्राइंगल का वो हमें लेना है. अभी उसका कैसे लेंगे हम, ये पूरा 84.46 है, ये पूरा ये जो हाइट है ये 84.46 है. मुझे तो इतना ही चाहिए, उसका इतना ही पोर्शन चाहिए नीचे वाला. तो ये इतना पोर्शन कैसा हो, कितना होगा, तो आप ये कर सकते हो 84.46 माइनस 30.18, तो आपको इतना पोर्शन मिल जाएगा. तो 84.46 माइनस 30.18, तो 54.28 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ट्राइंगल का आपको ये साइड मिल गया 54.28. ठीक है, अभी ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बी इंटू एच.
ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो क्या होगा आपका, ये प्रेशर की वैल्यू है 54.28, सो 54.28 ये प्रेशर की वैल्यू है, ये मतलब ये हाइट है उसकी। तो सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्राइंगल का एरिया ही हमें लेना है, सो दैट इज 1/2 इंटू बी। बी क्या है हमारा 1.8 मीटर, इंटू ये हाइट क्या है 54.28, इंटू 1 लेंथ के लिए कर रहे हैं, सो 1/2 इंटू 1.8 इंटू 54.28, तो 48.8, तो आपको ये मिलेगा 48.8 किलो न्यूटन, ठीक है। अभी ये ट्राइंगल का सी जी कहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ये पॉइंट पे लगेगा। तो बेस से कितना होता है वो 2/3, सॉरी बेस से होता है 1/3 और पॉइंट से होता है 2/3, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 1.8 डिवाइड बाई 3, तो सी पॉइंट से भी क्या होगा 1.8 डिवाइड बाई 3, तो 1.8 डिवाइड बाई 3, तो होगा 1.8 डिवाइड बाई 3 मतलब 0.6, ठीक है। अभी ड्यू टू दिस अगर सी पॉइंट पे मूवमेंट आप करोगे तो वो होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो उन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, सो 29.2, सो 29.2 होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर रही हूँ, तो दिस इज माय एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो टू मोमेंट्स आर पॉजिटिव, टू मोमेंट्स आर नेगेटिव, सो दिस इज द वे यू कैन find the total moment on this C point for the heel slab, because heel slab is behave like a cantilever, तो ये कैंटिलीवर तरीके से बिहेव होगा इसका। अगर आप डिफ्लेक्शन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। तो टेंशन एट टॉप, कंप्रेशन एट बॉटम, तो हील स्लैब में मेन रेनफोर्समेंट बार आपको टेंशन में टॉप में प्रोवाइड करना है, राइट। सो दिस इज अबाउट योर टोटल मोमेंट कैलकुलेशन। अभी उसके बाद क्या करना है, once you have all the positive and negative moment or clockwise anti-clockwise moment at C point, the next will be to do the resultant moment, अभी resultant moment में क्या करना है, those value which is having clockwise moment उसको आपको पॉजिटिव रखना है, those who are एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट उसको आपको नेगेटिव रखना है, उसको आपको नेगेटिव रखना है, ठीक है। तो आपका क्या होगा वैल्यू 138.51 प्लस 18.22 माइनस 48.86 माइनस 29.2, तो आपको ये टोटल मोमेंट रिजल्टेंट मोमेंट मिलेगा 78.67 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ये होगा आपका किलो न्यूटन इंटू मीटर में, ये आपका मीटर में है, ठीक है। तो ये आपको मिल गया किलो न्यूटन इंटू मीटर। सो रिजल्टेंट मोमेंट एट सी पॉइंट फॉर द हील स्लैब इज 78.67 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो हमारा जो ये मोमेंट की वैल्यू है, मोमेंट ऑन हील स्लैब इक्वल टू 78.67 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अभी ये मोमेंट को आपको फैक्टर मोमेंट में कन्वर्ट करना है, तो फैक्टर मोमेंट इज इक्वल टू एम यू, तो आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 1.5 करना है, तो आपको मोमेंट मिल जाएगा 118.0 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। सो दिस इज योर फैक्टर मोमेंट रिक्वायर्ड फॉर
हील स्लैब, मतलब ये मोमेंट के लिए आपको हील स्लैब के लिए रेनफोर्समेंट फाइंड करना है। वेक्टर मोमेंट 118 किलो न्यूटन इंटू मीटर, राइट। चलो अभी कैसे फाइंड करोगे, यूजिंग SP16। सो नाउ यू हैव mu is equal to 118 kilo Newton into meter. For SP16 you required mu upon BD square value, ठीक है। तो mu क्या है आपका 118 इंटू 10⁶। चलो नाउ b, ये है विड्थ की वैल्यू। विड्थ हमें क्या लेनी है, थ्रू आउट द लेंथ के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो 1 मीटर होगा उसका लेंथ, हम 1 मीटर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। इंटू डी, डी मतलब क्या हुआ आपका 0.450, डी मतलब 0.450। ये दिस इज योर कैपिटल डी ना, 0.450 इज कैपिटल डी। तो उसका कैसे करोगे आप, सपोज ये है आपका हील स्लैब, ठीक है, और ये है आपकी वैल्यू 0.450 कैपिटल डी, हमें चाहिए स्मॉल डी। तो क्या होगा, हील स्लैब में बॉटम के रेनफोर्समेंट आएंगे और उसके ऊपर अदर डायरेक्शन रेनफोर्समेंट भी आएगा, ठीक है। तो आपको कितना होगा, आपका 450 माइनस, कवर करो आप 50 का, माइनस ये फर्स्ट लेयर ऑफ रेनफोर्समेंट सपोज 12, माइनस हाफ ऑफ सेकंड लेयर रेनफोर्समेंट, उसको भी अगर 12 करूँ तो 6। सो 450 माइनस 50 माइनस 12 माइनस 6, सो इफेक्टिव डेप्थ मुझे मिलेगी 382। सो 0.382 स्क्वायर, ठीक है। सो आपको ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है mu अपॉन BD स्क्वायर की। 0.808, सो mu अपॉन BD स्क्वायर आपको मिला 0.808, ठीक है। नाउ what you need to do is you need to find the percentage still from SP16. So from SP16 आपको SP16 ओपन करना है, उसके अंदर आपको टेबल M20 के लिए लेना है। फॉर M20 और M20 Fe415 आपको यहाँ पे लिखना है टेबल नंबर 2 M20 आपका mu अपॉन BD स्क्वायर है 0.808, तो आपको यहाँ पे दिखना है 0.80 है, ये 0.808 है, तो यू कैन कंसिडर 0.85 ऑल्सो। तो 0.85 और Fe415 है, तो आपका परसेंटेज स्टिल है 0.248। सो फ्रॉम SP16 परसेंटेज PT is equal to 0.248, ठीक है। परसेंटेज इज 0.248%। उसके ऊपर से यू कैन फाइंड एरिया ऑफ स्टील। सो AST इज इक्वल टू PTBD अपॉन 100, ठीक है। सो 0.248 इंटू 1000 इंटू 382 डिवाइड बाई 100। So 0.248 into 1000 into 382 डिवाइड बाई 100। सो आपको एरिया मिलेगा 947 mm स्क्वायर, 947 mm स्क्वायर एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, ठीक है। 947 एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। नाउ
अभी आपको क्या करना है, अगेन फ्रॉम SP16 आपको स्पेसिंग फाइंड करना है बार का। सो 947 mm² है। आप अज्यूम करो प्रोवाइड 12 mm डायमीटर, अज्यूम मिनिमम आप 12 mm डायमीटर से कर सकते हो। सो प्रोवाइड 12 mm डायमीटर, ठीक है। अगेन SP16 में टेबल नंबर 229, टेबल नंबर पेज नंबर 230, टेबल नंबर 96, 12 mm बार लेना है, मतलब आपको ये कॉलम में देखना है 12 के, और सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका एरिया होगा 947 mm² है, तो सेंटीमीटर में होगा 9.47। तो आपको 12 के कॉलम में 9.47 से ज़्यादा कोई वैल्यू लेनी है। यहाँ पे 9.42 है, आपको चाहिए 9.47, तो आपको लेना पड़ेगा 10.28। ठीक है, तो 10.28 के लिए यहाँ पे देखना है आपको 11 सेंटीमीटर स्पेसिंग आ रहा है। 10.28 के लिए 11 सेंटीमीटर। सो प्रोवाइड 12 mm diameter at 11 centimeter means 110 mm सेंटर टू सेंटर टेंशन रेनफोर्समेंट। ये आपने डिज़ाइन की है टेंशन रेनफोर्समेंट की। तो टेंशन रेनफोर्समेंट एट कहाँ पे है टेंशन रेनफोर्समेंट, मैंने अभी आपको डायग्राम बताया कि ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है स्लैब। हिल स्लैब इज बिहेव लाइक अ कैंटिलीवर, कैंटिलीवर जैसे होता है वैसे ही हिल स्लैब का होता है। तो टेंशन एट टॉप, तो रेनफोर्समेंट एट टॉप ऑफ हिल स्लैब। तो हिल स्लैब में मेन रेनफोर्समेंट आएगा टॉप में। ठीक है, सो AST प्रोवाइडेड कितना है, हमें ये टेबल में से फिर से देखना है। AST प्रोवाइडेड इज 1028 mm², 1028 mm²। ये मिनिमम का क्राइटेरिया आपको यहाँ पर ही चेक कर देना है। यहाँ पे परसेंटेज 0.248 आया है, वो चेक कर लेना है कि 0.12 जो स्लैब में मिनिमम होता है ना 0.12 Fe415 के HYSD के लिए। सो 0.12 परसेंटेज से ज़्यादा है कि नहीं वो यहाँ पे चेक कर लेना। अगर कम है तो एटलीस्ट यू नीड टू प्रोवाइड 0.12 परसेंटेज, राइट। सो दिस इज योर टेंशन रेनफोर्समेंट एट टॉप ऑफ द हिल स्लैब। राइट, तो ये जो रेनफोर्समेंट है 12 mm 110 mm वो आपको प्रोवाइड करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअली कहाँ तक प्रोवाइड, कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, देखो यहाँ पे ये हिल स्लैब सिर्फ आपका ये इतना डिस्टेंस है 2.8 ही आपका हिल स्लैब है, 1.8 या 2.8 जो भी है 1.8, तो ये इतना ही है। बट एज पर कोडल प्रोविजन यू नीड टू एक्सटेंड दिस रेनफोर्समेंट। ये जो रेनफोर्समेंट है वो एक्चुअली आपको प्रोवाइड करना है फॉर द इकोनॉमी पर्पस। ये जो वैल्यू है इस उसके बाद आपको एक्सटेंड करना है आपका ये रेनफोर्समेंट अप टू LD लेंथ डेवलपमेंट, जो कैलकुलेशन मैंने आपको कल करवाया था वो। सो LD लेंथ तक एटलीस्ट ये बार को एक्सटेंड करना है। ये बार को यहाँ पे ये जंक्शन पिंच छोड़ नहीं देना है, यू नीड टू एक्सटेंड अप टू LD लेंथ। ठीक है, तो LD लेंथ कितना होगा, वो LD लेंथ का कैलकुलेशन आगे डायरेक्टली यू कैन टेक फ्रॉम SP16। तो LD लेंथ कितना होगा हमारा फॉर 12 mm डायामीटर टेंशन रेनफोर्समेंट हमने आगे फाइंड कर लिया है। तो फॉर 12 mm डायामीटर टेंशन रेनफोर्समेंट LD लेंथ इज आई गेस 564, चेक कर लेते हैं। फॉर 12 mm डायमीटर HYSD बार 564, 56.4 तो सेंटीमीटर में, सो 564। तो ये जो डिस्टेंस है ये वो होना चाहिए आपका 564 mm।
ठीक है. Now this is about tension reinforcement because why tension reinforcement? Because this is deflect like this. ये जो है ये ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, तो ये आपका टेंशन है और ये आपका कंप्रेशन है. नाउ यू नीड टू प्रोवाइड कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ऑल्सो यहाँ पे. तो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए? मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है वो. तो मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला जितना भी रेनफोर्समेंट है वो स्लैब में वो आपको प्रोवाइड करना है. सो प्रोवाइड मिनिमम रेनफोर्समेंट in compression side. As well as ये ऐसा है आपका, ठीक है, ये स्लैब है. तो जैसे आपने ये ऐसा रेनफोर्समेंट यहाँ पे डालोगे आप, ये डायरेक्शन में ऐसे होगा, तो आपको अदर डायरेक्शन रेनफोर्समेंट भी डालना है. अदर डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ ये. तो वो अगर ये फिगर में देखोगे तो वो आपको दिखाई देगा डॉटेड फॉर्म में. ये जो मैंने अभी ब्लू कलर के ड्रॉ किए वो दिखेगा आपको ये व्यू में डॉटेड फॉर्म में. ठीक है. तो ये डायरेक्शन में तो प्रोवाइड करने ही है आपको क्योंकि ये स्लैब है. तो स्लैब के रेनफोर्समेंट बोथ द साइड आते हैं, एक्स एंड वाई बोथ. ठीक है. तो आपको ये अदर डायरेक्शन रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करना है. सो प्रोवाइड मिनिमम रेनफोर्समेंट इन कंप्रेशन साइड एज वेल एज ट्रांसवर्स. बराबर. और कितना वो कितना होगा पीटी मिनिमम. तो मिनिमम जो स्लैब में रिक्वायरमेंट है वो 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया. ठीक है. तो 0.12 इंटू ग्रॉस एरिया मतलब बी इंटू कैपिटल डी. तो कैपिटल डी क्या होगा इसका 450. ठीक है. सो 0.12 इंटू 1000 इंटू 450 डिवाइड बाई 100. तो 540 डिवाइड बाई 100. सो 540 mm² है जो आपको मिनिमम प्रोवाइड करना है. बराबर. तो अगेन SP16 में जाओ तो प्रोवाइड मिनिमम 12 mm. तो 12 mm डाया एट. तो SP16 में पेज नंबर 230 पे फिर से जाओ. पेज नंबर 230. 12 mm. ये 12 mm नहीं देखना है आपको. 540 मतलब 5.40. सो यहाँ पे देखो 5.40. ये 5.39 है यहाँ पे. ये है 5.65 तो 20. ठीक है. तो हमें लेना है प्रोवाइड 12 mm डायमीटर एट 200 mm. देखो यहाँ पे उसका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली मिनिमम है तो ज़्यादा होगा. यहाँ पे ये 110 है क्योंकि ये मेन रेनफोर्समेंट है. तो मेन रेनफोर्समेंट यू रिक्वायर्ड मोर फॉर द टेकिंग द टेंशन फोर्सेस. और ये तो एडिशनल प्रोवाइड करते हैं तो उसका स्पेसिंग कम होगा तो उसके रेनफोर्समेंट आपको कम डालना है. राइट. सो प्रोवाइड 12 mm डायमीटर एट 200 mm सेंटर टू सेंटर. तो वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ. देखो ये बॉटम में, हिल के बॉटम में, और ये डायरेक्शन में भी होगा रेनफोर्समेंट. ठीक है. तो ये जो बार है दिस इज 12 mm 110 सेंटर टू सेंटर. और ये जो सब बार है ये रेड एंड ये डॉटेड टॉप एंड ये दिस ऑल आर 12 mm डाया एट 200 mm सेंटर टू सेंटर. ठीक है. अभी एक्चुअली जब आप पूरा रिटेनिंग वॉल की डिजाइन करोगे तब आप देन वी विल डिस्कस कि ये जो रेनफोर्समेंट ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ
हील में प्रोवाइड किया है, ये साइड पे नहीं, टो में नहीं होगा, टो की डिजाइन भी करेंगे। देन आफ्टर फाइनलाइज फिगर वी विल डिसाइड कि कौन से रेनफोर्समेंट बार थ्रू आउट प्रोवाइड करने हैं और कौन से रेनफोर्समेंट बार को आपको कर्टेल करना है इन द स्लैब पोर्शन इटसेल्फ। ये स्लैब की बात कर रही हूँ मैं, बिकॉज हमारी दिस टो स्लैब डिजाइन इज रिमेनिंग, दैट्स व्हाई दिस इज द डिटेलिंग फिगर ओनली फॉर द हील स्लैब। एक्चुअल हील स्लैब की जो रिक्वायरमेंट है उसकी फिगर ड्रॉप की है। देन आफ्टर वी विल डू द टो स्लैब डिजाइन ऑल्सो, और उसके बाद व्हेन विल डू द डिटेलिंग ड्राइंग जब करेंगे तब वी विल प्रोवाइड थ्रू आउट, मतलब ये जो रेनफोर्समेंट है वी विल प्रोवाइड थ्रू आउट, बट कितना कर्टेल करेंगे कौन से पोर्शन में, दैट वी विल सी एट दैट टाइम, right? So particularly this detailing is for the heel slab only for this moment at C point. यहाँ पे जो C point था उसके लिए movement की figure, right? So this is all about the heel slab calculation, flexure design calculation, reinforcement detailing calculation. Now so this is your, here it is provided 10 mm diameter, you can provide 12 mm diameter as well. Development length for 10, development length will be different, so 470 mm, right? Then distribution steel also we have, and this is the detailing for the tension reinforcement and development length. Now coming to check for shear. Now what to do with the check for shear? So again I am drawing this retaining wall. Right? This is your wall, and this heel slab, this is this heel slab portion. ये जो heel slab है, this is behave like a cantilever. ये भी कैंटिलीवर जैसा बिहेव करता है, जो फिक्स यहाँ पे है और फ्री यहाँ पे है. सो कैंटिलीवर के लिए व्हाट इज द क्रिटिकल सेक्शन फॉर कैंटिलीवर फॉर शियर कंडीशन, तो ये पोर्शन, ये सेक्शन एक्स, मतलब ये पॉइंट पे आपको क्रिटिकल शियर फाइंड करना है. अभी कैसे फाइंड करोगे क्रिटिकल शियर? सो फॉर दैट इतना आपके पास प्रेशर का डायग्राम है, ठीक है. दिस इज 30.18, दिस इज 30.18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये हमने फाइंड किया हुआ था आई गेस 84.48 समथिंग किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. दिस टू विल गिव द अपवर्ड प्रेशर. ऑल्सो वी डिस्कस दैट बैकफिल का डाउनवर्ड फोर्स आता है और सेल्फ वेट ऑफ स्लैब का इटसेल्फ का भी डाउनवर्ड फोर्स आता है. तो हमारे पास ये दो फोर्स है, डाउनवर्ड और ये है अपवर्ड. अपवर्ड में भी क्या है, इफ यू डिवाइड दिस टू, तो आपको ये एक रेक्टेंगल का अपवर्ड आएगा और यहाँ पे ये ट्राइंगल का अपवर्ड आएगा. तो हमें सेक्शन एक्सेस पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है. रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन. तो वो कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम जो ये डाउनवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स फाइंड करते हैं. फर्स्ट वी विल फाइंड द डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है. ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो ये जो दो फोर्स फाइंड करेंगे वो भी हम किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही फाइंड करेंगे. और वो कैसा होगा, कैसा लगेगा? वो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ऐसा, यूडीएल का लोड है और इस तरीके से वो लगेगा इन टर्म्स ऑफ यूडीएल थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है. तो अभी ये फोर्स कितना है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, वो हमें फाइंड करना है. तो वो कैसे मिलेगा? सो यहाँ पे आपको लिखना है टोटल डाउनवर्ड
प्रेशर के टर्म्स में हमें चाहिए किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में। तो टोटल डाउनवर्ड प्रेशर किस किस का होता है डाउनवर्ड प्रेशर, एक तो बैकफिल, बैकफिल का लिखना है प्लस सेल्फ वेट ऑफ हिल स्लैब, बैकफिल का होगा और सेल्फ वेट ऑफ हिल स्लैब का होगा। अभी बैकफिल का कितना होगा, तो डेंसिटी बैकफिल की है 18, डेंसिटी ऑफ बैकफिल इज 18, ठीक है। और हमें ये लेंथ हमारे पास है 1.8 मीटर, हमें यूनिट चाहिए किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे कि ये किलोमीटर पर मीटर क्यूब इंटू एक ही डायमेंशन मल्टीप्लाई करेंगे, और वो डायमेंशन क्या होगा, ये हाइट ऑफ स्टेम 4.75, ठीक है। सो 18 इंटू 4.75, तो ये हमें मिल जाएगा किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में। सेम वे सेल्फ वेट ऑफ हिल स्लैब, तो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी 25 इंटू 25 इंटू, अभी 25 इंटू क्या करेंगे हम, ये 1.8 मीटर पे हम लोड फाइंड कर रहे हैं, तो अदर डायमेंशन क्या होगा हमारा, ये 0.450, ठीक है। सो 25 इंटू 0.450, तो इन दोनों का एडिशन करो तो आपको टोटल डाउनवर्ड प्रेशर मिल जाएगा 96.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये टोटल यूडीएल लोड मिल गया है 96.75 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अभी हमें उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करोगे, देखो ये यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ 96.75, ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, थ्रू आउट 1.8 मीटर पे लग रहा है, तो ये मैंने ऐसे बता दिया, ये है मेरा लेंथ 1.8 मीटर, ठीक है। और ये जो मेरा फोर्स जो है ना, ये ट्राइंगल अपलिफ्ट वाला, वो मैं अगर फिर से यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, तो ये है मेरा 84.48, ये है मेरा 30.18, और ये है मेरा 96.75, यहाँ पर भी क्योंकि थ्रू आउट सेम है 96.75, ठीक है। और ये अपवर्ड लग रहा है, ये भी अपवर्ड लग रहा है। अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करके मुझे एक फाइनल डायग्राम ड्रॉ करना है। वो कैसे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे और एक ये पॉइंट पे फाइंड करना है। तो ये पॉइंट पे देखो, ये है आपका 96.75 डाउनवर्ड, ये है 84.48 अपवर्ड, तो 96.75 डाउनवर्ड मतलब पॉजिटिव, 84.48 अपवर्ड मतलब नेगेटिव, तो मेरी वैल्यू क्या होगी यहाँ से 12.27, तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आई है वो आई है 12.27 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ये पॉइंट पे। अभी यहाँ पे देखो, ये है डाउनवर्ड 96.75 और ये अपवर्ड है 30.18, तो 96.75 प्लस माइनस 30.18, तो 66.57, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आई 66.57, दोनों वैल्यू मेरी पॉजिटिव आई, मतलब मेरा डायग्राम ऐसे बना, ठीक है। सो दिस इज 12.127 और ये 66.57, और दोनों वैल्यू मेरी पॉजिटिव आई, मतलब मेरा जो रिजल्टेंट डायग्राम है वो ऐसे बना 66.57 डाउनवर्ड और 12.27 वो भी डाउनवर्ड, मतलब ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड का जो फोर्स लग रहा है उसका हमने रिजल्टेंट फाइंड कर लिया। अभी ये दोनों रिजल्टेंट मेरे हैं किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, और मुझे जो लोड चाहिए यहाँ पे, द फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स, वो तो मुझे किलो न्यूटन में चाहिए। तो मुझे क्या करना है, अगेन मैं क्या करूँगी, ये जो ट्रेपेजोइडल है उसको मैं डिवाइड करूँगी दो पार्ट में, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है मेरा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल ये है, ठीक है। तो मुझे चाहिए किलो न्यूटन में वैल्यू, ये मेरी 12.27 है, 12.27 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में, मतलब मुझे
मीटर स्क्वायर 2 यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। मेरा फर्स्ट यूनिट क्या होगा, ये लेंथ है तो 1.8 मीटर, और दूसरा लेंथ मेरा क्या होगा 1 मीटर। तो ये मुझे 12.27 के लिए मुझे किलो न्यूटन में फोर्स मिला। वैसे ही ये 12.27 है तो ये इतना डिस्टेंस कितना होगा 66.57 माइनस 12.27, तो ये होगा 54.3, ये होगा 54.3। और ये है मेरा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2 इंटू 54.3 इंटू 1.8 इंटू 1। तो ये हो गया मेरा फोर्स 12.27 इंटू 1.8 रेक्टेंगल का, एंड 54.3 इंटू 1.8 डिवाइड बाई 2 दैट इज ट्राइंगल का। तो मेरे पास जो फोर्स मिला वो मिल गया मुझे 17.95 किलो न्यूटन का मुझे फोर्स मिल गया। 17.95 फोर्स, फोर्स मतलब शियर फोर्स एट सेक्शन XX मिल गया। ठीक है, उसको मुझे फैक्टर शियर फोर्स में कन्वर्ट करना है। तो फैक्टर शियर फोर्स मतलब FVU। तो फैक्टर शियर फोर्स क्या होगा, ये लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो मुझे मिल जाएगा 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 106.43 किलो न्यूटन। तो सेक्शन XX पे मुझे फैक्टर लोड मिल गया, VU का वैल्यू मिल गया 106.43। अभी उसके बाद क्या करना है, जैसे हम लोग बीम और स्लैब में करते थे, वंस यू हैव VU यू कैन फाइंड टाउ V इज इक्वल टू VU अपॉन BD। तो VU क्या है 106.43 इंटू 10⁻³ B क्या लेना है हमें 1000, और D क्या लेना है हील स्लैब का थिकनेस। तो हमने आगे सपोज 382 समथिंग कुछ फाइंड किया था, तो उससे हमें मिल जाएगा टाउ V की वैल्यू इन न्यूटन पर mm²। देन टेबल नंबर 19 IS 456 you can find tau C value. Check करो whether you are getting tau V less than tau C or not. Then this is your check for shear. So here see this 106.70 हमारा भी वही आ रहा है 106, and check करो find out tau V 0.26 tau C. So here tau V is less than tau C. So here you have considered, you have checked that your shear is okay. So no need to provide stirrups in slab. That means the slab is safe for the shear condition. Right. So this is all about full design of heel slab.